So we are required to find the current I1 that flows through the resistor 2 of 2 ohms, and given here are three sources. So we'll be solving this question using superposition theorem, and then after studying about Thevenin's theorem and Norton's theorem, we'll try to solve the same problem and obtain the values using those theorems as well. So as I told you before, that when you deal with superposition theorem, when you're asked to solve a problem using superposition, the first thing is that you identify all the sources. So in this problem we have three sources, two of which are voltage source, third is a current source, and then what we do is we consider one source at a time. For example, you will have to redraw this figure. So let's say the first figure is that you are going to consider the 12 volt source, the 2 ohm resistor, the 3 ohm resistor, and then you have a 6 ohm resistor. Now I told you that when you're going to take one source, you will be replacing the remaining sources with their internal resistance. The internal resistance of a current source is infinite, and thus this terminal will become open, and the voltage sources will be short circuited. So this place will be having a short circuit, while this will be open circuit. So an open circuit branch, the current that flows through 2 ohm will not flow through the branch which has an open circuit, because there is no path for the current to flow, or the path doesn't complete, and thus all the current that flows through 2 ohm will pass through the 6 ohm resistor. Okay, this is the first circuit. Then we'll be having the second circuit, where you will be considering the current source only and short circuiting the remaining two voltage sources. So what we did here is we short circuited the two voltage sources, and we have the current source of 6 amperes. This is 3, this is 2, this is 6, all in ohms. And then the third case, फ्लैश स्क्रीन क्या फ्लैश की वजह से नहीं नज़र आती? नहीं, और लोगों को दिख रही है, आप देख लीजिए आपकी क्या प्रॉब्लम। नहीं, स्क्रीन आ रही है मेरी नज़र, देख लीजिए आप क्या प्रॉब्लम हो रही है। थर्ड केस ये है कि आप 8 वोल्ट्स, जी, तो अब 8 वोल्ट्स का जो सोर्स है उसको कंसिडर करेंगे थर्ड केस में। सो दिस इज़ a 8 वोल्ट, सॉरी 8 वोल्ट प्लस माइनस 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम, और इंटरनल रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस कर देंगे इस वोल्टेज सोर्स को, विच विल बिकम शॉर्ट सर्किट, एंड सिंस दिस इज अ करंट सोर्स, दिस विल बी ओपन सर्किट। ठीक है, तो ये सेकेंड केस हो गया और ये थर्ड केस हो गया। अब इसमें यहाँ पे आपके पास में ब्रांच 2 ओम में आपको करंट निकालना है I1, ये I1 दिया हुआ है यहाँ पे, I1 निकालना है 2 ओम में, तो इसको आप I1 डैश मान लीजिए पहले केस, दूसरे केस में आप इसको मान लीजिए I1 डबल डैश, और थर्ड केस में आप इसको मान लीजिए I1 ट्रिपल डैश। ठीक है, तो सुपरपोजिशन, इफ़ यू are trying to solve this problem using superposition theorem, then superposition theorem says that the current value I1, this I1 will be equal to I1 dash plus I2 dash, I1 double dash, sorry, and I1 triple dash। ठीक है, यहाँ तक बात सबके समझ में आ गई?
अब आपको एक एक पहला केस लेके चलना है। पहले केस ये ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद सेकंड केस, फिर थर्ड केस। एक मिनट जी। ठीक है, तो पहला केस क्या था हमारे पास? हाँ, तो जी माइनस प्लस 12 वोल्ट्स, टू ओम्स, ये देखिए पहले केस को अगर आप देखेंगे तो पहले केस में ये बीच वाली जो ब्रांच है जहाँ पे करंट सोर्स था, दिस इज़ ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब ये होगा कि इस पूरी ब्रांच को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू परफॉर्म, इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव एनी यूजफुल behavior. So this is as good as if you remove the branch, the whole branch. So you are going to remove the 3 ohm branch which is open circuited. So we will not be drawing this branch. Then we have 6 ohm, ठीक है। So the circuit that we draw in the first case had the middle branch which was open circuited, and hence that is eliminated, and what we are left with is the given circuit here. Now the current I1, we call this current as I1 dash. Is that fine? Is it clear to all? So I1 dash can simply be found as, well in fact you can use Ohm's law here. So this is 12 divided by voltage divided by total resistance is 8 ohms. So this comes out to be equal to 1.25 amperes. जी, oh sorry, 1.5, 12 divided by 8 is 1.5 amperes. ठीक है, ये सब के समझ में आ गया यहाँ तक? इसमें हाँ ठीक है, चलिए इसको देखिए जी। जी क्या पूछ रहे हैं? ये समझ में आ गया सबके? जी किसी नहीं, करंट डिवाइडर क्यों लगाएंगे यहाँ पे? करंट डिवाइडर नहीं लगेगा। करंट डिवाइडर पैरेलल ब्रांच में लगता है। ये करंट आता है, ये I1 हो जाता है, ये I2 हो जाता है। ये करंट डिवाइडर पैरेलल ब्रांचेस में लगता है। ये ब्रांच तो आपकी सीरीज़ है। यहाँ वोल्टेज डिवाइडर तो लगा सकते हैं, लेकिन वोल्टेज आपको निकालना ही नहीं है, आपको करंट निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक तरफ लिख देता हूँ पहली वैल्यू जो हमने निकाली I1 डैश, विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1.5 एम्पियर्स। अब दूसरा केस कंसिडर करते हैं। दूसरा केस क्या है? दूसरे केस में आपके पास में यू शॉर्ट सर्किटेड ऑल, हाँ यू शॉर्ट सर्किटेड द वोल्टेज सोर्सेज। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं बता दूँ कि डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो अगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो सोर्स है दैट इज़ प्लस बिलो एंड माइनस अबव, एंड वी ऑल नो दैट द करंट ऑलवेज। जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी आवाज़ आ रही है? जी आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी?
मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी आप सब। अच्छा, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम शुरू हो गई। हाँ जी, आ रही है। ठीक है, ठीक। देखिए, तो इसमें अगर आपने करंट की डायरेक्शन कंसिडर नहीं करी तो आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये होता है जो करंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका वोल्टेज सोर्स है विद ए प्लस साइन बिलो, विच मीन्स दैट द करंट फ्रॉम द सोर्स विल बी कमिंग एट दिस एंड। द करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम दिस एंड आउटवर्ड एंड विल बी एंटरिंग एट दिस एंड। तो माइनस साइड में एंटर कर रहा होगा, प्लस साइड से निकल रहा होगा। ये बात समझ आती है सबके? ठीक है, तो इनफैक्ट जो करंट का डायरेक्शन होगा यहाँ पे, वो फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट होगा, क्योंकि करंट। हाँ देखिए, इसलिए मैं देखिए दोनों चीज़ें हैं। अगर आप इसको नेगेटिव ले रहे हैं तो फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड साइड आप सारे पॉजिटिव लेंगे। तो एक तरीका ये है कि आप इसको साइन के साथ में इवेल्युएट करते हुए चलें। फॉर एग्जांपल मैंने ये जो भी प्रॉब्लम ये करी है, फर्स्ट केस जो करा है, तो अगर आप इसको साइन के टर्म्स में लेंगे तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा। लेकिन मुझे उससे बहुत आसान मेथड मैं आप लोगों को बताऊँगा। अभी पहला केस मैं दोबारा बनाता हूँ समझाने के लिए। 6 2। तो आपने जो करंट I1 डैश निकाला था उसका एक्चुअल डायरेक्शन ये है, फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट। तो आपको करना, आप प्लस माइनस मत लीजिए, क्योंकि प्लस माइनस में अगर मान लीजिए 4 सोर्स हो गए, 5 सोर्स हो गए, तो हो सकता है कन्फ्यूजन आपको क्रिएट होने लगे। प्लस माइनस में गलती भी हो सकती है। तो सबसे अच्छा, सबसे आसान तरीका जो है उसमें आप डायरेक्शन एरो यहाँ बना दीजिए। ठीक है, यानी फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, ये एरो मैंने बना दिया। इसका मतलब ये है कि I1 डैश फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट इन द रजिस्टर 2 ऑफ 2 ohms। बात सुना गई? ठीक है, अब दूसरा केस करते हैं। दूसरे केस में आपने आइडेंटिफाई करा करंट, करंट फ्लो कर रहा है 6 एम्पियर्स डाउनवर्ड इस ब्रांच में। ठीक है, सो द करंट will be divided into two parts. One will flow in this branch, the other will go in this branch. ठीक है, इसका मतलब I1 डबल डैश का जो डायरेक्शन हमने शो किया है वो सही है यहाँ पे। तो इस फिगर को मैं रीड्रॉ करता हूँ जी। सेकेंड केस को मैं रीड्रॉ करता हूँ। सेकेंड केस हमारे पास में है व्हेन यू हैव a 6 ampere source. So 6 ampere, then we have 3 ohms, 2 ohms, 6 ohms। ठीक है, इसको आपने कहा I1 डबल डैश, इसको I2 कह लीजिए या कोई और I0 कह लीजिए। अब हमें इंटरेस्ट है टू फाइंड द करंट दैट फ्लोज 2 ohm थ्रू द 2 ohm रजिस्टर, एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू फाइंड I0। तो I1 डबल डैश पता लगाना हमें। तो I1 डबल डैश का डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट है थ्रू दी 2 ohm रजिस्टर, एंड दस वी विल सिंपली बी अप्लाइंग द करंट डिवाइडर रूल। देखिए यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल लगेगा क्योंकि आपके करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो I1 डबल डैश विल बी इक्वल टू, अब इस ब्रांच में आपको करंट इवेल्युएट करना है तो उसके सामने वाली ब्रांच को देख लीजिए। तो I विच इज 6 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 6 ohms। इस ब्रांच के सामने वाला रजिस्टर 6 ohm है, या इसके इस ब्रांच के पैरेलल में जो रजिस्टर है दैट इज 6 ohms डिवाइड बाई 6 प्लस 2 ohms। करंट देखिए किन ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, मैंने ये बताया था ना आपको। अगर ये कर, हाँ, तो आपके पास ये 6 ohm है, ये 2 ohm है, I0 और I1 डबल डैश। तो आप इसको, आप इस ब्रांच को अगर देखिए, ये जो ब्रांच है ये वाली, ये ब्रांच 6 ohm वाली, इसको पिक करके आप उठा के इधर की तरफ भी तो लगा सकते हैं। यानी अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ इस तरीके से, भाई वायर्स हैं आपके पास में, वायर्स आप उठा के यहाँ पे भी तो ला सकते हैं। कर सकते हैं ऐसा।
देखिए हाँ नहीं, ये यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ करेंगे। ये टर्मिनल है ना आपका। ठीक है, तो ये अब 2 ओम और 6 ओम जो है ये पैरेलल में आ गए। यानी इसको और मैं अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ इस सर्किट को, तो आप इस सर्किट को और ऐसे करके बना सकते हैं। 6 ओम, 2 ओम, ये पॉइंट कॉमन हो गया, 3 ओम, और ये करंट सोर्स है। ठीक है, तो ये दोनों ब्रांच पैरेलल में आ गई। हाँ नहीं नहीं, नेट नहीं निकालना है, मैंने बताया ना I1 डबल डैश मैंने निकाल लिया है। मुझे इंटरेस्ट है सिर्फ 2 ओम रजिस्टर में करंट फाइंड करने हैं। आपको जो है सिर्फ I1 डैश निकालना है, I0 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि I0 का यूज़ नहीं है। निकाल लेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यूज़ नहीं है कुछ भी। तो हाँ, तो इसकी कितनी आई, I1 डबल डैश 4.5 एम्पियर। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, I1 डबल डैश इज़ 4.5 एम्पियर एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट। जी, एक मैं बस ये कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आप पूछ लीजिए, या वैसे ही है छोटा सा कुछ सवाल है थ्योरेटिकल। पूछिए पूछिए। जी नहीं, नहीं नहीं, वोल्टेज देखिए, वोल्टेज इन ये देखिए, ये दो रजिस्टर पैरेलल में हैं, इनके वोल्टेज सेम आएंगे क्योंकि इन रजिस्टर के साथ में कोई और चीज़ कनेक्टेड नहीं है। लेकिन इन रजिस्टर में आपके पास देखिए, इस रजिस्टर के साथ एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, इस रजिस्टर के साथ एक करंट सोर्स है, और इस रजिस्टर के साथ फिर ऐसा एक वोल्टेज सोर्स है। तो ये वोल्टेज सोर्स बीच में एक यानी एक बैरियर कह लीजिए, या एक बीच में इंटरमीडिएट है, जिसकी वजह से सबके वोल्टेज जो है वो बराबर नहीं हो सकते। हाँ हाँ, जी जी। नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, ये आप कह सकते हैं कि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज है वो तीनों ब्रांच में सेम है। ठीक है, अब अगर आप करंट सोर्स के वोल्टेज की बात करें, व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स? जी नहीं, अगर मैं तीनों, देखिए ये जो 3 ओम का रेजिस्टर है ये पैरेलल में करंट सोर्स के साथ में है, बीच में करंट सोर्स आ रहा है ना। बिल्कुल इक्वल रहेगा, ये देखिए यहाँ पे इक्वल है, तभी हमने करंट डिवाइडर रूल लगाया है। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 एम्पियर सोर्स नहीं होता तो आप कहते कि तीनों के जो है वोल्टेज सेम है। ठीक जी, अब थर्ड केस की बात करें, कि मैंने नोट कर लिया दोनों केसेस का। थर्ड केस देखिए क्या है। थर्ड, जी जी बताइए। हाँ, पहले डायरेक्शन देख लीजिए, डायरेक्शन सही लिया या नहीं लिया आपने। ये 8 वोल्ट सोर्स है, ये ओपन सर्किट है, इसको रिमूव कर देंगे, तो करंट जो होगा दैट विल बी कमिंग आउट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स एंड द डायरेक्शन विल बी फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट, एंड दस I1 ट्रिपल डैश विल बी फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, आप यहाँ पे इसको लिख भी सकते हैं कि I1 डैश का डायरेक्शन ये है, I1 डबल डैश का डायरेक्शन ये है, या I1 ट्रिपल डैश का डायरेक्शन ये है। इसको रीड्रॉ कर लीजिए उस सर्किट को। सो वी हैव 2 ओम ओपन सर्किट, जहाँ पे आपकी ब्रांच थी उसको नहीं ड्रॉ करेंगे। देन यू हैव 6 ओम रजिस्टर, वोल्टेज सोर्स ऑफ 8 वोल्ट्स। ठीक है, डायरेक्शन I1 ट्रिपल डैश आपने इसको माना था। I1
triple dash is equal to V upon 6 plus 2, which is 1 ampere, and the direction is from right towards left. So I1 triple dash is 1 ampere from right towards left. ठीक है, ये तीनों करंट निकल के आ गए जी, हो गया ठीक है. सो यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम I1 will be equal to I1 dash, I1 double dash, I1 triple dash, and I1 is 1.5 ampere, direction is from right towards left, and I1 double dash is 4.5 ampere from left towards right, and 1 ampere from right towards left. अब इसमें देखिए, from right towards left you have total current of 2.5 ampere, and from left towards right you have 4.5 ampere. So you have this particular current to be larger than 2.5, and thus the net resultant will be 2 amperes from left towards right. ठीक है, एक मिनट, नहीं, हाँ देख जी, तो जी 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 नहीं नहीं, यही चीज़ मैंने पिछली बार आप लोगों को जब सुपरपोजिशन पढ़ाया था बताया था मैंने आपको कि नोडल और मैश एनालिसिस आप लोग पढ़ चुके हैं, और उसमें केवीएल केसीएल आप अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो एक जी, नहीं नहीं निकलेगा ज़रूर के नहीं, केवीएल देखिए मैश एनालिसिस करिए इसमें, क्योंकि आपने हो सकता है केवीएल लगाने में जो 6 एम्पियर का सोर्स है वहाँ गड़बड़ कर दी होगी उसके अक्रॉस. जी नहीं, वो इसीलिए क्यों, देखिए आपको वहाँ पे वहाँ, हाँ वहाँ पे आपको केवीएल नहीं लगाना है, वहाँ पे आपको केसीएल लगाना है उस नोड पे. तो मिडिल ब्रांच में, हाँ मिडिल ब्रांच में आपका 6 एम्पियर करंट फ्लो होगा 3 ओम से, तो वहाँ उस पॉइंट पे जो ऊपर पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट पे आप केसीएल अप्लाई करेंगे. नीचे 6 एम्पियर जा रहा है, यहाँ से करंट आ रहा होगा, यहाँ से करंट आ रहा होगा. ठीक है, और केवीएल जो केवीएल आप अप्लाई करेंगे, केवीएल कभी भी करंट वाली ब्रांच में अप्लाई नहीं करते. जिस लूप में करंट सोर्स आ रहा होता है उसमें केवीएल नहीं लगाते. यानी अगर आप केवीएल इस लूप में लगाने की कोशिश करेंगे तो ये गलत हो जाएगा. केवीएल इस ब्रांच में लगेगा नहीं जिस, जी जी, हाँ तो उसका ये मेथड है कि आप जो आउटर लूप है ये वाला जो, इसमें केवीएल अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, नहीं नोडल और मैश आपके सिलेबस में नहीं है तो जी. देखिए हाँ, ये जो करंट, जी जी, केवीएल और केसीएल जब आप अप्लाई करेंगे, मैश या नोडल एनालिसिस करेंगे, तो उस केस में आप जो केवीएल अप्लाई करेंगे वो उस लूप में नहीं करेंगे जिस लूप में करंट सोर्स आता है. फॉर एग्जांपल ये छोटी लूप जो है ना, एक लूप, ये लूप है, ठीक है, और एक ये लूप है, ये दो लूप हैं. तो इन दोनों लूप्स में आप जो है केवीएल अप्लाई नहीं करेंगे. इसी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में एक करंट सोर्स आ रहा है 6 एम्पियर का, ये करंट सोर्स है. करंट सोर्स वाली लूप में कभी भी केवीएल अप्लाई नहीं होता है. हाँ नहीं, आप वोल्टेज ही नहीं निकाल पाएंगे, इसके क्रॉस क्या वोल्टेज है आप नहीं बता सकते. नहीं नहीं नहीं, इसके क्रॉस कोई वोल्टेज आप बता नहीं सकते कि करंट सोर्स के क्रॉस क्या वोल्टेज होगा. आप हमेशा केवीएल अप्लाई करेंगे आउटर लूप में, क्योंकि इसमें कोई करंट सोर्स नहीं है. ठीक है, नहीं नहीं वो नहीं, ये तो आप ये तो कैसे नहीं, आप ये तो कह सकते हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, क्योंकि ये पैरेलल में है 6 ओम और 8 वोल्ट रेजिस्टर के, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में नेट वोल्टेज क्या है वो तो आप बता सकते हैं. ठीक है,
ये जी 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 ठीक है, नहीं ठीक है, 18 आपने कर दिया। अब जी जी जी, अब मिसाल के तौर पे ये आपका प्लस माइनस 12 वोल्ट आया और आई वन की वैल्यू 2 एम्पियर्स आ गई, तो 2 × 2 कितना हो गया? 4। 4 हो गया, 4 ओम्स आ गया, और इसमें करंट इस साइड में एंटर हो रहा है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा जब के वी एल एनालिसिस आप करेंगे। ठीक है, बस में आ रही है, जिस साइड में करंट एंटर हो रहा है उसको आपने प्लस ले लिया, और जिस साइड से निकल रहा है उसको माइनस ले लिया। ये एप्लीकेबल होता है रजिस्टर में, सोर्स में उल्टा होता है, जिस साइड में प्लस होता है वहाँ से करंट निकलता है, रजिस्टर में जहाँ करंट एंटर हो रहा होता है वो प्लस होता है। ये सब के वी एल में आप पढ़ चुके हैं। बस में आती है सबके? हाँ, मतलब आपको जहाँ पे भी पैरेलल जैसे ब्रांचेस मिल रही हैं तो वहाँ पे करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे तो आसान हो जाएगा। जो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं ओम्स लॉ, उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि उसमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स बढ़ जाएंगे आपके, लेकिन वोल्टेज डिवाइडर और करंट डिवाइडर आप यूज़ करेंगे तो 2 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा। देखिए, अब ये जो आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि भाई इसमें कितना वोल्टेज 18 होगा या कितना होगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 2 ओम रेजिस्टर में वोल्टेज कितने आ रहे हैं? 4 वोल्ट्स, जिसका प्लस माइनस ये है। ठीक है, तो ये आपके पास में 4 वोल्ट ड्रॉप आ रहा है। अब यहाँ पे माइनस और प्लस 12 वोल्ट्स है। जब आप इसमें के वी एल, यानी इस पॉइंट में अगर आप वोल्टेज देखना चाहते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या वोल्टेज है इस ब्रांच में, जिसमें 2 ओम और 12 वोल्ट्स है, तो माइनस से प्लस आप जाएंगे 4 वोल्ट, और माइनस से प्लस आप जाएंगे 12 वोल्ट्स, तो 4 + 12 हो जाएगा 16 वोल्ट्स। इसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट, यहाँ पे अगर माइनस ले लेंगे और यहाँ प्लस ले लेंगे तो ये वोल्टेज इन दोनों पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ये कि अगर आपके पास में कोई वोल्ट मीटर है या मल्टीमीटर है, उसको उसके एक टर्मिनल को यहाँ कनेक्ट करिए और दूसरे टर्मिनल को यहाँ कनेक्ट करेंगे तो आपको 16 वोल्ट वोल्टेज उसमें डिस्प्ले होगा। नहीं नहीं नहीं, करंट सोर्स है। जी, करंट सोर्स है ये करंट जनरेट कर रहा है 6 एम्पियर का। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है ये नहीं बता सकते आप, इसलिए केवीएल नहीं अप्लाई कर सकते इसमें आप। जो ये याद रखिएगा, केवीएल के जो रूल्स हैं उसमें ये रूल है कि उस लूप में आप केवीएल अप्लाई नहीं करेंगे जिसमें करंट सोर्स आता है, इसलिए इसमें जो केवीएल अप्लाई करेंगे वो आउटर लूप में करेंगे। ठीक है। अब अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम थोड़ा सा 3 सोर्स के लिए लंबा भी हो जाता है, तो इसी तरीके से सुपरपोजिशन आप एसी नेटवर्क्स में अप्लाई करते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, आपको वहाँ पर डायरेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपके वहाँ पे एंगल फॉर्म में डायरेक्शन अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको आई वन डैश निकाला आपने, तो आई वन डैश निकल के आया, फॉर इंस्टेंस मैं मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ, आई वन डैश एसी के केस में आपके निकल के आया लेट्स से 3 एम्पियर 40 डिग्रीज। ठीक है, तो ये 40 डिग्री जो है ये डायरेक्शन खुद अपने अंदर में लिए हुए है। तो यहाँ पे आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी कि डायरेक्शन लेफ़्ट टूवर्ड्स राइट है या राइट टूवर्ड्स लेफ़्ट। ये सब चीज़ें एंगल जो आप ले रहे हैं उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन आपको इसका सोल्यूशन मैं अपलोड कर दूँगा, कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग समझ लीजिएगा उससे। अगर फिर भी डाउट होता है तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो एक सर्किट में ले लूँगा 3 सोर्स का, उसमें एसी सोर्सेज होंगे, और उसमें फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपने अगर 12 वोल्ट डीसी की जगह एसी लगा दिया, 6 एम्पियर की जगह एसी लगा दिया, 8 की जगह एसी लगा दिया, तो वहाँ पे आपको फिर क्या सोल्यूशन आता है, वो जो मेथड आपने पोलर रेक्टेंगुलर कन्वर्जन में जो सीख रखा है वही सारे मेथड यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो आपको कन्वर्जन करना होगा, जहाँ एडिशन होगा वहाँ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में एडिशन करना पड़ेगा, जहाँ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा वहाँ पोलर कोऑर्डिनेट्स में करना पड़ेगा। तो उस तरीके से करेंगे। आपको आई वन डैश निकालना होगा, आई वन डबल डैश निकालना होगा, आई वन ट्रिपल डैश निकालना होगा, तीनों का फेज़र यानी फेज़र सम करना होगा।
तो वो आपका फाइनल करंट आ जाएगा।